हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिविकास बायोलॉजी। आज का टॉपिक है फ्लावर। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एस्टिवेशन, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर। फ्लावर, द प्लांट्स हैविंग फ्लावर कॉल्ड एंजियोस्पर्म प्लांट्स। So flower is the reproductive part of angiosperm plants. Reproduction type is sexual means. As the mean of reproduction is sexual, so male and female reproductive part also present. Male reproductive part called androecium, female reproductive part called gynoecium. A typical flower has 4 whorls arranged on a swollen end called thalamus. Suppose ये फ्लावर है। फ्लावर के एंड में हम देखते हैं ऐसे ग्रीन कलर का, दिस इज थैलेमस, swollen end. In this thalamus, 4 whorls arranged: calyx, corolla, androecium, gynoecium. 1, 2, 3, 4 ये चारों थैलेमस के अंदर अरेंज्ड होते हैं. There is 2 type of flower. First, bisexual flower, in which both androecium and gynoecium is present. Bisexual flower में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा. अब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर कितने टाइप्स के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक में वर्टिकल सिमेट्री है. एक्टिनोमॉर्फिक, when flower divided into 2 equal radial halves in any radii. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में जब हम फ्लावर के अंदर किसी भी रेडियाई से अपने प्लान को क्रॉस करेंगे, then it divided into 2 equal radial halves called radial symmetry. Actinomorphic symmetry possesses radial symmetry. Example, mustard, dhatura. Next type of symmetry is zygomorphic symmetry, when flower divided into 2 similar parts only in one vertical plane, called zygomorphic symmetry. Example, pea, gulmohar. Again, on the basis of number of appendages present, there is a 3 type of flowers. Trimerous, in which 3 floral appendages present. Tetramerous, 4 number of floral appendages present. Pentamerous means 5 floral appendages present. Next type, on the basis of bracts. If bracts is present in the flower, then flower is the type of bracteates flowers. Abracteate flower में क्या है? Flowers without bracts. On the basis of ovary position, there is a 3 type of flower: hypogynous flower, perigynous flower, and last, third one is epigynous flower. First, hypogynous flower. In this type of flower, ovary occupies the highest position and called superior. हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी की पोजीशन सबसे हाईएस्ट पोजीशन होगी. इस केस में ओवरी को हम सुपीरियर कहते हैं. एग्जाम्पल, मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज. इन केस ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर, इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां पर है? सेंटर पे प्रेजेंट है. अदर पार्ट आर ऑन द
रिम एट सेम हाइट। बाकी पार्ट्स कहां पर हैं? रिम पर प्रेजेंट है, सेम हाइट पर। इन दिस केस ओवरी इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर। एपिगाइनस फ्लावर, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज टू कंप्लीटली कवर द ओवरी। एपिगाइनस फ्लावर में क्या है? थैलेमस इस तरीके से ग्रो हो रहा है कि उसने ओवरी को पूरा कवर कर लिया है, देन ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। हाइपोगाइनस के केस में ओवरी कॉल्ड सुपीरियर। पेरिगाइनस फ्लावर, ओवरी कॉल्ड हाफ इंफीरियर। एपिगाइनस फ्लावर, ओवरी सेड टू बी इंफीरियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफ्लोरेसेंस. Inflorescence means arrangements of flowers. Arrangements of flower called inflorescence. Arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence. There is a two type of inflorescence. First, racemose. Second, cymose. In case of racemose, main axis continues to grow. Racemose में main axis continue grow होती है. साइमोस के केस में मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर हैविंग लिमिटेड ग्रोथ। साइमस के केस में मेन एक्सिस की लिमिटेड ग्रोथ है और वो कैसे एंड हो रही है? इन फ्लावर। सपोज ये मेन एक्सिस से ग्रो होती जा रही है, फ्लावर यहां प्रेजेंट होंगे, बट इन दिस केस एक्सिस एंड विद फ्लावर। इन रेसिमोस, flowers are borne laterally in an acropetal succession, while in case of cymose, flowers are borne in a basipetal succession. Example, radish, mustard. Example, jasmine, bougainvillea. अब acropetal succession क्या है? In acropetal succession, flowers growth from base to apex. While in basipetal, flower grows apex to base. Acropetal के केस में ओल्ड फ्लावर्स होंगे वो बेस पर होंगे और अपेक्स पे न्यू फ्लावर्स होंगे। क्योंकि बेस पर नए फ्लावर आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और अपेक्स वाले नए रहेंगे। और बेसिपेटल के केस में जो न्यू फ्लावर्स हैं वो अपेक्स पे आते हैं तो अपेक्स वाले जल्दी पुराने हो जाएंगे और फिर बेस पर न्यू फ्लावर्स रहेंगे। ठीक है, तो एक्रोपेटल सक्सेशन में फ्लावर ग्रोथ फ्रॉम बेस टू अपेक्स, while in basipetal apex to base. Next is calyx called sepals. It is the outermost whorl in thalamus. Green and leafy. क्या काम करता है? प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। बड स्टेज में फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करता है। देयर इज अ टू टाइप ऑफ कैलिक्स, वन गैमोसेपलस, सेकेंड पॉलीसेपलस। गैमोसेपल्स मीन्स सेपल्स यूनाइटेड, पॉलीसेपल्स मीन्स सेपल्स फ्री। इसमें सेपल्स प्रेजेंट है, इसमें सेपल्स फ्री है यानी एब्सेंट है। Next part is corolla. Corolla consists petals. They are colored to attract insects for pollination. Corolla is also two types, gamopetalous and polypetalous. Gamopetalous में क्या है? Petal present है। Polypetalous में क्या है? Petals are absent. They are petal free. Estivation. Estivation किसे कहते हैं? What is estivation? Arrangements of sepals or petals in floral bud is called estivation. There is a four type of estivation: velvet, twisted, imbricate, vexillary. First, velvet estivation. The whorls of sepals or petals touch each other. Velvet में कैसा होता है? सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कि उनके जो एजेस होते हैं आपस में टच कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या है? द whorls ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप ईच अदर। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में सेपल्स और पेटल्स के एजेस एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इन अ
रेगुलर मैनर और इन अ रेगुलर पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए। अगर हम इसको देखेंगे तो एक रेगुलर पैटर्न आपको दिखेगा। एस्टिवेशन, मार्जिन ओवरलैप्स ईच अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर फैशन। इसमें एक पर्टिकुलर और रेगुलर फॉर्म में, एक रेगुलर फैशन में ओवरलैप नहीं करती। जैसे सपोज सेकंड वाली ऐसे प्रेजेंट है तो थर्ड वाली ने इसको ऊपर से ऐसे ओवरलैप किया है, तो इरेगुलर फैशन हो गया। बट इन केस आप देखेंगे इसके नीचे ये, इसके अंडर ये, इसके अंडर ये, एक रेगुलर फॉर्म है ओवरलैपिंग का। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, देयर आर 5 पेटल्स। यहाँ पे 5 पेटल्स हैं। जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड, जो ओवरलैप करती है फर्दर अपने से छोटी 2 लैटरल पेटल्स को। और वो जो 2 लैटरल पेटल्स है जिसे विंग्स कहा गया है, वो अपने से छोटी 2 और स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप करते हैं, जिसको कहते हैं कील। ठीक है। Vexillary estivation, there are 5 petals. The largest standard overlaps 2 lateral petals wings, which in turn overlap 2 smallest anterior petals keel. Androecium, this is the male reproductive part, consists stamen. Each stamen consists filament and anther. Each anther consists pollen sac. Pollen sac produced pollen grain. Pollen grain कंसिस्ट मेल गैमेट्स। यानी स्टेमन है, स्टेमन के पास एंथर है, एंथर के पास पोलन सैक है। पोलन सैक क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये स्टेम नोड, मीन्स स्टेराइल स्टेमन। एपिपेटलस, stamens are attached with petals. When stamens are attached with petals called epipetalous. Example ब्रिंजल। पॉलीएंड्रस के केस में क्या है? स्टेमन्स आर फ्री। मोनोएडेल्फस के केस में स्टेमन यूनाइटेड इन 1 बंडल। डाईएडेल्फस के केस में स्टेमन आर यूनाइटेड इन 2 बंडल्स। पॉलीएडेल्फस के केस में स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन 3 बंडल और मोर देन 2 bundles. It means anther in this 3 type of adelphous form, anther united the stamen either in 1 bundle, in 2 bundle or in 3 bundle. मोनोएडेल्फस के केस में एंथर स्टेमन को 1 बंडल के फॉर्म में यूनाइटेड करके रखता है। डाई के केस में 2 बंडल, पॉली के केस में 3 बंडल और मोर देन 2 बंडल। अब नेक्स्ट द गाइनोशियम, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कंसिस्ट 1 or more carpels. Each carpel is made up of stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. Apocarpus, when more than 1 carpel is present, then called apocarpus. Example lotus and rose. Syncarpus, when carpels are fused together. जब carpels आपस में fuse हो जाते हैं, then form syncarpus form called syncarpus. Example mustard, tomato. After fertilization, जब fertilization हो जाता है, then ovules form seed and ovary form fruits. Next topic is placentation. What is it?
The arrangement of ovules within the ovary is called placentation. There is a 1, 2, 3, 4, 5 type of placentation. Marginal, example is P. Axial, example China rose. Parietal, example mustard. Free central, example dianthus. Basal, example sunflower. The topic flower is completed. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.